بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آفس سے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچا تھا آج اپنی بیوی ارم سے وہ محبت کا اظہار کروں گا جو وہ سالوں سے چاہتی تھی، لیکن جب میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کی اور میری بیٹی نور کی باتیں سنی تو میرے ہاتھ سے گجرے زمین پر گر گئے۔ وہ جو باتیں میں نے سنی وہ سن کر میری دنیا ہل گئی۔ کیا میری بیٹی اور ارم نے مل کر مجھ سے سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا، یا پھر یہ میری ہی غلط فہمی تھی؟ اب سنتے جائیے یہ دل دہلا دینے والی کہانی۔ آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ارم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا میرے گھر میں نور اور ارم کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیٹی نور ارم کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ دونوں ساتھ ہوتی تو گھر میں رونق سی لگ جاتی تھی۔ میرے گھر کی خوشی ان دونوں ہی سے تو تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے چھوٹ کر زمین پر گر گئے تھے جو میں ارم کے لیے لایا تھا۔ ان باتوں کو سن کر تو میں گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چاپ سی ہی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے پورا وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ظاہر ہے میں دن بھر کام پر ہوتا، حالانکہ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی تھی، اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ باقی کا وقت میں نور کو دینے کی کوشش کرتا تھا، اسے اس کی اسکول کی روٹین پوچھتا تھا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں ارم نہیں آ گئی تھی۔ ارم ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور پڑھتی بھی میری بیٹی کے اسکول میں تھی۔ 8ویں جماعت سے ان کی دوستی ہو گئی تھی اور اب میری نور ہر وقت ارم کے گھر پر رہتی تھی، یا پھر ارم ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ارم کے والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چچا سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا کیونکہ میری شادی کم عمر ہی میں ہوئی تھی، اور بیوی بھی میری کزن تھی۔ ہم دونوں میں بہت محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ بس قسمت میں ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی ارم سے ہوئی تھی وہ ہنسنے لگی تھی، بات چیت کرنے لگی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگ رہتی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتی، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی، کچن میں ادھم سا مچا رہتا تھا، اور بعد میں اپنا کیا جانے والا تجربہ مجھے ضرور کھلاتی تھی، اور وہ جیسا بھی بناتی تھی میں کہتا تھا بہت مزے کا ہے۔ ارم مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ میری بیٹی نور تھی۔ میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ نور نے پری انجینئرنگ امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ نور اس بار میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نور نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ارم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں اور ارم، میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔
मैंने कहा, नूर तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वो कहने लगी, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, इससे मेरी बहुत दोस्ती है बाबा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। आप इरम से शादी कर लें, मुझे इरम चाहिए। मैं इसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा, वो कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें दे दूं। एक जीती जागती इंसान है और मुझे वो तुम्हारी तरह ही अजीज़ है। मैं किसी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे इरम के सामने, इसके चचा के सामने शर्मिंदा कर दे। नूर तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो सुनकर ही दिमाग चकरा कर रह गया था। वो बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि मैंने तो कभी इसमें और तुम में फ़र्क तक नहीं समझा। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझसे इस किस्म की बात की तो मैंने आज तक नूर को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो इसकी बात ऐसी थी कि मेरा लहजा सख्त हो गया। मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था कि वो कैसे ये सब सोच सकती है। मेरे सख्त लहजे को सुनकर नूर रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ आएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल फरामोश कर देता। लेकिन नूर ने तो हद ही पार कर दी थी। खाना पीना तर्क कर दिया और नढाल सी अपने कमरे में लेटी रहती। मैं वजह पूछता तो कहती कि मैं इरम से शादी पर राज़ी हो जाओ। भला ये भी कोई ज़िद है? मैं कैसे इसके कहने पर किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर सकता था? मैंने नूर को बहुत समझाने की कोशिश की। गैर मुनासिब सी बात है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही ना थी। वो 2 दिन से भूखी रही, तीसरे दिन कमज़ोरी से बेहोश हो गई। मैं अब इसके सामने खुद को बेबस सा महसूस करने लगा था। मैं इसकी बात मान भी लेता तो इरम के चचा ये सुनते ही इसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी नूर इरम का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में नूर का चेहरा खिला कर रह गया था, लेकिन मैंने इस बात की खबर इरम को नहीं दी थी। लेकिन अब मैं बेबस सा हो गया था। नूर की हालत देखकर मैंने इरम को कॉल की, इस बात की इतला दी कि नूर बीमार है। ये सुनते ही इरम फ़ौरन अस्पताल के कमरे में पहुंच गई और सीधी नूर के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, नूर तुम्हें क्या हो गया है? इरम भी नूर के लिए बेतहाशा परेशान थी, फिक्रमंद थी। नूर ने भी इरम की आवाज़ सुनकर ही अपनी आंखें खोली थी। रोने लगी, कहने लगी, इरम मेरे बाबा को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने बाबा से कहा था कि तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि नूर इरम के सामने ये बात कह देगी। मैं तो शर्मिंदगी से नज़रें झुका के बैठ गया था। क्या सोच रही होगी वो नूर के बारे में? किस किस्म की लड़की है ये? मैं तो कमरे से फ़ौरन ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे इरम से नज़रें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे इरम के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल ली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो ना था, लेकिन जो परेशानी मुझे नूर ने दी थी, मैं फ़िक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद इरम बाहर आ गई। मैं कमरे से बाहर खड़ा था। इससे नज़रों का तसादम होते ही मैंने नज़रें झुका लीं। कुछ ना करके भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वो मेरे पास आई, कहने लगी, मुझसे शादी कर लें। मैंने कहा, इरम तुम मुझे देखती भी नहीं हो सकती। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल नूर की तरह अजीज़ हो। नूर जज्बाती है, इसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ इसकी बात का बुरा मत मानना। वो तुमसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में फजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसीलिए तुमसे ये सब कह रह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं इसे समझा दूंगा। लेकिन वो कहने लगी कि ये सिर्फ नूर की नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। इरम की इस बात ने तो मुझे शर्मसार कर दिया था। मैं इसे बड़ी हैरत और ताज्जुब से मिले जुले जज्बात से देख रहा था। मुझे लगा
मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं। मैं ये क्या सुन रहा था और किस से सुन रहा था? मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे इस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की मेरे बारे में कैसे ये सब सोच सकती है? मैं इसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि मुझे इससे बात करनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने अपना रुख बदल दिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट होंठों में दबा लिया। मेरे चेहरे पर तफक्कुर था। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो ऐसा चाहती क्यों है। वो खुश शक्ल थी, कम उम्र थी, इसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं मतवाजज का शिकार था, लेकिन वो बहुत इत्मीनान से खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप नूर की ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देते? मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी नज़रों में मेरी? मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज़ है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। वो कहने लगी, मेरे चचा को कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लें। ये बात भी मेरे लिए हैरान कौन थी। भला इसका चचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के शख्स से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया। इरम मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बड़े एतमाद से दे रही थी। फिर वहाँ से चली गई। शाम तक नूर भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। इसने फिर यही कहना शुरू कर दिया। कहने लगी, अब तो इरम को भी कोई एतराज़ नहीं है, आप क्यों नहीं मान जाते? मैं इसके सामने हथियार फेंक चुका था। मुझे शादी की ना ज़रूरत थी, ना ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। ये बस मेरी बेटी की ज़िद थी। और फिर जब इरम को एतराज़ भी नहीं था तो मैं कब तक नूर पर सख्ती करता। इसीलिए मैंने खुद इरम के चचा से इस बात का जिक्र किया। वो कहने लगा कि मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी बीवी का रवैया इरम से ठीक नहीं है। मेरी बीवी इरम के बहुत पीछे पड़ी है और अपने निकम्मे भाई से इरम की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा किस्म का लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप इससे शादी कर लें। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इसे खुश रख सकते हैं। चंद दिनों में ही मैंने सादगी से इरम से निकाह कर लिया। इस दिन नूर की खुशी काबिल दीद थी। वो बहुत खुश थी। रात को इरम मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। अचानक शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से। मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार न था, इसीलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा रहा। नूर भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि इरम को एतराज़ नहीं है और वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है, तो मुझे भी कबूल कर लेना चाहिए। खुद को ज़हनी तौर पर कुछ आमादा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त मैं उलझा हुआ था। बिलाखिर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इरम दुल्हन के अरूसी लिबास में सजी संवरी बैठी थी। मेरी आमद पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरा जहन बहुत मुंतशिर होने लगा। मैं इससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी किस्म की कोई जज्बात न थे। फिर भी मैं इसके सामने जाकर बैठ गया। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और इसके हाथ पर पहना दी। वो आज काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने ही बात शुरू की कि देखो इरम, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं फ़िलहाल दिल से और दिमागी तौर पर इस रिश्ते को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे वक्त चाहिए। इसीलिए तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो नूर के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर एतराज़ करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर बहुत सारी ख्वाहिश होती है, लेकिन वो बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं नूर के पास हो जाती हूँ। वो फ़ौरन
कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरान कुन सी थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत सी ख्वाहिशें दिल में रखती है, फिर वो मेरी ख्वाहिशमंद भी थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? बकौल इसके मैं इसे पसंद था, इसीलिए इसे कुछ न कुछ एतराज़ तो होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा इसे भी वक्त देना चाहिए। इरम अब रोज़ाना नूर के पास सोने लगी, इसके साथ ही हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज़ इन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठ जाती और नूर को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले नूर मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। मैंने इस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन इसी रात जो कुछ मेरे और इरम के दरमियान हुआ, इसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। एक बार मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि इरम मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि नूर सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूँ, सुबह संडे है, छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ। वो बैठ के मुखालिफ साइड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नज़र का चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब इस पर पड़ी तब भी वो मुझे ही देख रही थी। बेसाख्ता ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी, मुझसे कहने लगी आप इस उम्र में भी देखने में इतने हैंडसम हैं, जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है। इसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल ये समझ नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। मैंने कहा हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ, अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी, फिर बोली खैर ऐसी बात तो नहीं, अभी भी आप एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था मैं समझी थी कि आप नूर के बड़े भाई हैं। फिर कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप नूर के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली बीवी आफरीन से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मोहब्बत देखते हुए मेरी और आफरीन के लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते इसकी आंखें बंद होने लगीं। वो बेड की दूसरी जानिब बैठी थी, वहीं लेट कर सो गई। मैंने पहले तो इसे जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैंने इस पर लिहाफ उड़ा दिया, मैं खुद भी सो गया। मेरे दिल की धड़कनें नई लहर पर इस वक्त बेइख्तियार हुई जब इरम नींद में मेरे करीब आ चुकी थी। मेरे बाजू पर सर रख कर सोई हुई थी। इसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ देखकर मैं नींद से हड़बड़ा कर उठा था, लेकिन जब इसे अपने इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों ने बेइख्तियार सी रफ्तार पैदा कर दी थी। पहली बार मैंने इसका चेहरा इतने करीब से देखा था। इसकी कुर्बत ने मेरे अंदर नए जज्बात को बुरी तरह झंझोड़ सा दिया था। पहले ही जब से गुजर रहा था, बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी। एकदम बादल की गर्ज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई, मेरे सीने पर सर रख लिया। मैं पसीने से शराबूर हो गया था। फिर वो नींद में बुड़बुड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। मैं कुछ बेइख्तियार सा होने लगा, इसीलिए मैंने इसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल आफरीन के बाद किसी के लिए यूं बेइख्तियार हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे में दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो नूर भी घबराती है। इरम गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से इसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। नूर अड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही मेरे साथ लगी। बाबा, मुझे डर लग रहा था। बादल इतनी ज़ोर से गरज रहे थे। फिर इरम भी मेरे पास नहीं थी। मैंने नूर का माथा चूमा, इसे तसल्ली दी। फिर कहा कि नूर, अब तो बड़ी हो जाओ। चंद बारिश और बादल की गर्ज चमक से
कौन डरता है, जाओ सो जाओ इरम के साथ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। नूर इरम के बराबर में सो गई और मैं नूर के कमरे में आकर लेट गया, लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल निकाह के तकाजे को पूरा करने की मुतमनी होने लगा था। मेरी नज़र खुद ब खुद इरम के लिए बदलने लगी थी। एक बार मेरे एक दोस्त ने दावत दी। मैं नूर और इरम को पहले ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफिस से वापस आया तो इरम मेरे कमरे में 2 जोड़े हैंगर्स में लिए बेड पर रखी बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई? कहने लगी, आज ये मुझसे समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। नूर भी नहीं बता रही। आप मुझे बताएं ना, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूँगी। इसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी नूर का ही बाप हूँ, मुझे इन बातों का कुछ नहीं इल्म। जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहन लो। वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताती हुई बोली, मेरे भी तो कुछ लगते हैं, मुझे आज आपकी पसंद पहनी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। वो किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी, मैं इसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने इसे एक लिबास का बता दिया। वो खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि रोज़ इसकी तारीफ़ इनकी लफ्ज़ों में करूं, जैसे आफरीन की करते थे, मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था। कभी कभी इरम भी नूर की तरह बेख्तियार दिखाने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद कर लाता तो वो नूर की तरह मेरे गले लग जाती। मेरे कान के करीब आकर कहा कि आई लव यू अर्जेंट एंड थैंक यू सो मच। नूर मेरी बेटी थी, इसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। इसका मुझसे इज़हार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात इरम मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल डालने लगता। इरम का बेख्तियार मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि इसे अपने कमरे में रखा करूं, इसकी तारीफ़ किया करूं, इसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज इरम से दिल की बात कह दूंगा और इसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ मेरे कानों में नूर और इरम के हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। मेरे घर में इन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे से इसके कमरे तक पहुंचा, लेकिन जो बातें इन दोनों के दरमियान हो रही थी वो सुनकर तो मेरी रूह फनासी हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे ज़मीन पर गिर गए थे जो मैं इरम के लिए लाया था। मैं तो गोया ये बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। ये क्या खेल खेला था इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। बड़े भारी कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट कर आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आगे आईने पर नज़र पड़ते अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि 40 की बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत ज़ब्त के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब वही इरम गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई। कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं? कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वो भी ज़मीन पर? वो भी मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गरम करो, मुझे भूख लगी है। वो ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझ पर आश्कार हो चुकी थी, कैसे मुमकिन था कि मैं इसके करीब भी जाता? मुझे अपना आप धुआं धुआं सा लग रहा था। इसके बाद मैंने खुद ही इरम से फासला रखना शुरू कर दिया। आज वो दोनों कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई तो इरम मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नज़रें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर ही आ रहा था, लेकिन इसे अपने सामने देखकर रुक गया। वो अब भी मुझे मुस्कुराकर देखकर पूछने लगी, अरे जानवीर। मैंने इसे दुरुस्तगी से देखा और गुस्से से इसके दोनों बाजू को पकड़ा। इसकी आंखों को देखकर सख्त लहजे में कहा, बताओ तुम्हें कि कैसी लग रही हूँ? मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सहम सी गई। शायद
मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने इसे सख्ती से लफ्ज़ चबा कर कहा, बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने इसे छोड़ दिया। वो फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी खोल रही थी, जी चाह रहा था कि इरम से इससे भी ज़्यादा सख्त रवैया इख्तियार करूं। मैंने हारन बजाना शुरू कर दिया। नूर भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरो दिखाती हुई बोली, आप भी ना बाबा बहुत जल्द मिल जाते हैं। आपको पता तो है कि लड़कियों को कितनी तैयारी होती है। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो नूर की बात का हंस कर जवाब भी देता। मैं खामोशी से बैठा रहा। हैरत तो मुझे इरम को देखकर हुई थी, जो मुंह धोकर बिल्कुल सादा हुलिये में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने इसके चेहरे से नज़रें हटा ली। वो जब मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने इसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो, लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वो दबी दबी सिसकियाँ लेकर रोती रही। नूर इस वजह से पूछ पूछ कर थक गई कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर मुझसे खेल जाए। इसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने इससे सख्त लहजे में क्यों बात की, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर गई। मेरा हक पर था। मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था, बस कमबख्त दिल इख्तियार में नहीं रहा था। इरम की सिसकियों ने पूरा दिन मुझे बेचैन रखा। खामखा ऑफिस में मेरे हाथों स्टाफ की शामत आती रही। इरम अब मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ नहीं कहती थी, मुझे मुकम्मल से दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वो मुझसे दूर ही रहे, लेकिन बस इसकी नज़रें मुझ पर जमी रहती थीं, जिनमें न जाने क्यों ढेरों शिकवे थे। वक्त आगे को बढ़ गया। इन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए नूर का रिश्ता मांग लिया। वो लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने नूर से इसकी रजामंदी पूछी थी, क्योंकि ये बेटी का हक है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट ही इसका इकरार थी। चंद माह में नूर की शादी तय हो गई थी। जिस दिन नूर रुखसत हुई, इरम से गले लाकर खूब रोई। इरम भी रो रही थी। नूर जा चुकी थी, अब घर में सिर्फ मैं था और इरम थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। मैंने इरम से कहा कि मुझे इससे कुछ बात करनी है। वो कुछ थकी थकी सी भी लग रही थी, फिर नूर की जुदाई से उदास भी थी। वो लाउंज में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं इसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि ये मजबूरी का बंधन अब ख़त्म कर दूं, जिसे इरम ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। इस दिन वो और नूर यही बातें कर रहे थे। इरम, तुमने बाबा से शादी अपनी चाची के भाई से बचने के लिए कर तो ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। बाबा तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारा भी मेरी तरह ये दिल चाहता होगा कि तुम्हारा शौहर भी। नूर ये कहकर चुप सी हो गई और इरम हंसते हुए बोली, मेरा शौहर भी हैंडसम और दुशहरा है। मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे बाबा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं। वो इरम की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं इसे पसंद नहीं था तो अस्पताल में मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं इसे अच्छा लगता हूँ। मैं बाहर खड़ा एक अजाब से गुजर रहा था। नूर, तुम मेरी मजबूरी जानती थी। चाची मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है अरजानवीर की बातें मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान सा बन गई, क्योंकि मैं इसे चाहने लगा था। वो नाम भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम बाबा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई ख़त्म होते ही अपने हम उम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है इरम को कि तुम शादी करोगी किससे। क्या कोई तुम्हारी नज़र में है? बाबा की फ़िक्र मत करो, मैं इन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दें। वो मेरी बात नहीं टालेंगे। नूर ने दोस्ती की खातर मुझे
बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया था। इरम के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ, एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान है, बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे। ये सुनकर मेरा अपना आप धुआं धुआं सा हो गया था। नूर ने बेचैनी से पूछा था, अच्छा, तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया, बताओ कौन है वो। लेकिन इरम टाल गई। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। इसी वक्त सोच लिया था कि इरम को नूर की शादी के बाद इसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा। इसलिए बात मैंने खुद ही इससे शुरू की थी। इरम, तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो इससे कहो कि मुझसे आकर मिल ले। मैं तुम्हें इससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जानवीर, मैं मज़ीद किसी ड्रामाबाजी की ज़रूरत नहीं। इरम, मैं तुम्हारी और नूर की बातें सुन चुका था। जाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है। मुझे जैसे बूढ़े की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। तुम अगर मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था इरम, और वो मैं सच सुनकर भी दे देता। लेकिन जो खेल तुमने और नूर ने मेरे साथ खेला वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझसे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम इससे शादी पर राज़ी हो? मैं बहुत दिल गिरफ्ती से बात कर रहा था, बड़े ज़ब्त से गुज़र रहा था, क्योंकि वो अब मेरे दिल की मकीन बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एक टुक मुझे देखे जा रही थी, शायद अपने रवैये पर नादिम थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द अज जल्द इस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर इरम और नूर मुझसे सच कहती। लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था मेरे जज्बात पर बुरी तरह मजरू थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने पर मैं चौंक सा गया। जानवीर इरम थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। इरम की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। इस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वो अब भी इसी लिबास में थी जो नूर की शादी पर पहना था। वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। इसी वक्त वो भी इसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नज़रें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? इरम की बात पर मैंने बड़ी हैरत से इसे देखा। ये कैसा है बेतुका सवाल? वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे? मैं आपको कैसी लग रही हूँ अर्जानवीर? मैं तो अपनी जगह फरीद सा हो गया था। आपने आधी अधूरी बातें सुनी हैं। इरम ने मुझे सारी हकीकत बता दी। इसने कहा कि इसे लगता था मैंने चाची के बेटे से बचने के लिए मजबूरी में आपसे शादी की है, इसीलिए मैं नूर को वही जवाब दे रही थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं इसे यकीन दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी, और वो हर लड़की होती है, लेकिन इसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे। इसीलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक्त बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपकी कुर्बत चाहिए थी अर्जा, मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए था, लेकिन मैं खुद से ये बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार इसका शोहर उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी, लेकिन नूर की आमद ने मुझे तन्हा ही रहने दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं, आपकी मुझ पर सताइश भरी नज़रें उठें। आपकी नज़रें मुझे अंदर तक मसरूर कर देती थीं। मैं बहाने बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरी ख्वाहिश का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के हैं।
ارجا ارم مجھ سے شکوے کر رہی تھی، میں نے اسے اپنے اثار میں لے لیا تھا۔ ایک غلط فہمی تھی جو ہمارے درمیان پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے ارم کی جانب پہل نہیں کی تھی۔ یہ غلطی تو میری تھی۔ میں نے اس کا اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے اس کا پہلا حق دیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میں نے تعریف کی ابتدا کی۔ یوں روتے ہوئے ارم نے خفگی سے مجھے دیکھ کر پوچھا، شکوہ بھی کیا؟ میں مسکرانے لگا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، بظاہر بھی اور دل کی بھی۔ بچی میں ہی اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔